Well, I'm really grateful to the Directorate of Rajasthan State Archives, uh, Dr. Karkawat, Honorable Minister, for gracing the occasion, and to all the audience, to the organizers of this wonderful seminar, for all the Department of the State Archives who have put in so much effort to put this together, and all the scholars and in fact very senior professors, other professionals who are here. आप मुझे माफ करेंगे, मैं अंग्रेजी में ही अपने को अभिव्यक्त ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, इसलिए ये अंग्रेजी में ही लिखूंगी, बोलूंगी. What I'm trying to talk about today, a keynote is supposed to really pull the themes together. बट यहाँ पे थीम्स इतनी वेरिड हैं और इतनी अपने तरह से दे आर पाथ ब्रेकिंग ऑल्सो दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी एट दिस स्टेज टू पुल मेनी ऑफ द थीम्स टुगेदर. बट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट द आर्काइव्स फ्रॉम अ यूजर्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज मैंने आर्काइव्स को काफी समय से देखा है. जब से मैंने अपना इनफैक्ट हम लोग को MA से ही इनकरेज किया जाता था कि हम रिसर्च करें और आर्काइव्स को विजिट करें, और उस समय से मैं देख रही हूँ आर्काइव्स को. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई सी इज आर्काइव्स को अगर हम लोग देखें, इट इज अ पब्लिक रिकॉर्ड. इट्स अ पब्लिक रिकॉर्ड. देयर हैज बीन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स. आई मीन, this is not a new thing. The British did it in a systematic manner, but before that also there has been a long tradition of keeping public records by administrations of all sorts. And that record keeping is also a very, very important part of the democratic process. That this is a public record which can be accessed by future generations. It can be accessed by various kinds of people who can then, on the basis of that, have an idea of what goes on in the public departments, in institutions that affect us. So there has been record keeping, as I said, but also there are sometimes severe disruptions. मुझे एक चीज याद आती है, मैंने 1857 पे काम किया हुआ है. 1857 में जो विद्रोह हुआ, दिल्ली में जो विद्रोह हुआ, उसमें मुगल जो कोर्ट था, मुगल कोर्ट जो था, उसके अक्सर रिकॉर्ड्स मेजॉरिटी खत्म हो गए. दे वर डिस्ट्रॉयड इन दैट रिवोल्ट, क्योंकि जब अंग्रेजों ने वापस आके लाल किले पे कब्जा किया, उन्होंने सारी उनकी रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जला दी. तो वी हैव ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. तभी देखिए रिकॉर्ड्स सच एज the state. I went to the museum yesterday in the archives and I saw these wonderful, अगर आपने म्यूजियम ना देखा हो तो जरूर जाइए. It had these wonderful farmans which were displayed there. Can you imagine if these farmans were not preserved here, they are gone from the Mughal archive because they were destroyed. Many of them were destroyed. So it's those which have gone to other places which now remain. So there are disruptions also. But I'm talking about a user's perspective. तो अगर historian को देखा जाए तो historian feels very disappointed when you see that a lot of records get destroyed. So we are very concerned with how to preserve records, even though the work is that of a professional archivist. It's the archivist who is doing the job, but historians have shall we say, a vested interest in being interested in what records are preserved. I think so, and I'm also, because I'm addressing so many students, I will also talk a little bit about what kind of things archivists do, which historians are interested in. So, how do the archives come to get records? How do they get the records? This is a process which we are very familiar with. It's called the transfer of records. These are all transferred from active government departments to the record keeping agency, which is the archives. So the transfer of records in a timely manner is a very important part of the process. हम लोग अक्सर देखते हैं कि 1947 में जब
आजादी मिली तो लॉट ऑफ और when the states come to be, when from the Rajasthan perspective, when the states come to be a part of the Indian Union, lot of the records then are collated in these in the archives. The systems are merged, and these terms of transfer of records, of course, is an ongoing process. ये कई लोग समझते नहीं हैं कि ये तो ongoing process है. आजादी को अब काफी साल हो चुके हैं, हम जानते हैं, और ये जो रिकॉर्ड्स का जो ट्रांसफर है, दिस हैज टू बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस. और किस तरह से वो ट्रांसफर होंगे, इसमें हिस्टोरियंस का क्या रोल हो सकता है? बिकॉज देखिए, नॉट एवरी रिकॉर्ड इज प्रिजर्व, नॉट एवरी रिकॉर्ड इज ट्रांसफर्ड. What are the records preserved? Which should be preserved? Which should be transferred? कौन ये decide करता है? Of course, archivists have their own processes. They have their own processes, but historians also probably can contribute in that process from a user's point of view. What are the kinds of things that we as historians who are studying the past want to see preserved? And then, of course, a very important part of that is the preservation of records before they come to the archives. You know, we are hoping that in due course various records will be transferred to the archives, but in the meanwhile they are being preserved in government departments. तो वो preservation कैसे होगा? Do departments have these kind of capacities where they can preserve, make sure? I have, without naming any specific departments, I can tell you that मेरा जो एक्सपीरियंस इतने सालों का है, उसमें मैंने देखा है कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो काफी आर्काइवल मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं, और क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं है कि इसकी क्या appreciation नहीं है of the historic value of these, they are treating them quite badly sometimes. So that also is something that has to be seen. How are they to be preserved? Then, of course, तो ये तो हुई बात traditional thinking of archives, how it is to be preserved. आगे क्या होगा? पर आगे क्या होगा? एक तो देखा जाए कि आगे की तरफ कदम राजस्थान स्टेट आर्काइव्स में ऑलरेडी काफी हद तक आगे पहुंच गए हैं. ये डिजिटाइजेशन प्रोग्राम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम. ये जो डिजिटल टर्न आया है आर्काइव्स में, अगर हमें ग्लोबल डेवलपमेंट्स की तरफ देखना है और उनसे कदम से कदम मिला के चलना है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है. तो इसमें भी डिजिटाइजेशन प्रोग्राम ये है कि आप नए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं कि डिजिटल फॉर्म में एक उसकी तस्वीर लेके रिकॉर्ड की रख सकते हैं आप, और उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं. तो that digitization program is very important for the process, for greater access to records. एक तो उनका preservation और उनका access कि कोई कहीं भी बैठ के वो records को देख सकता है. So that is of course very important. उसमें कुछ चीजें आती हैं जो कि बहुत अगेन जो आपको डिजिटल आर्काइव के ऊपर प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, उससे पता चलेगा कि किस तरह से मेटा डेटा की इंपॉर्टेंस फॉर बीइंग एबल टू एक्सेस. उसमें भी मुझे लगता है कि द एंड यूजर का अगर कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा लिया जाए कि एंड यूजर क्या, उनको जब वो एक्सेस करते हैं, हम लोग जो स्कॉलर्स हैं जब वो रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं मेटा डेटा यूज करके, कीवर्ड्स जिसको हम कीवर्ड्स और टैग्स और वगैरह यूज करते हैं, तो ये किस तरह से हमें क्या बाधाएं कई बार मिलती हैं कि हम कुछ चीज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं. या फिर ऑब्वियसली एक तो बहुत सिंपल सी चीज है जो डेटा एंट्री में प्रॉब्लम्स होती है, कई बार स्पेलिंग की मिस्टेक्स जैसे कि उसमें प्रॉब्लम आ जाती है. तो इस टाइप की ये तो बहुत सिंपल चीज हुई. एक और चीज मैं छोटा सा कहना चाहूंगी. डिजिटल जो हम कह रहे हैं कि अब हम डिजिटल करेंगे, इसमें एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है. देयर इज अ मटीरियलिटी टू द रिकॉर्ड. There are materials, those records are materials also. They are paper, they are photographs, जो भी है. तो उसमें दो चीजें
चीज आती है, कई बार जब मैं फोटोग्राफ देखती हूँ ऑन अ डिजिटल फॉर्मेट, मैंने देखा कि वेबसाइट ने फोटोग्राफ तो स्कैन कर ली, पर फोटोग्राफ के पीछे क्या लिखा हुआ है वो स्कैन नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो इमेज नहीं है। बट हिस्टोरियन के लिए वो उसका जो पीछे जो किसने लिखा है, उसकी चाहे वो डेट हो, चाहे कोई और चीज लिखी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पिक्चर फ्रेम में है तो फ्रेम में क्या लिखा हुआ उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो वो मटेरियल जो है वो सारा मटेरियल है एक साथ, तो वो बहुत जरूरी है कि वो कंपोजिट हमें एक पिक्चर मिले। दूसरी चीज ये है, एक चीज हम लोग को सोचनी चाहिए कि एक बार हमने डिजिटाइज कर लिया तो वो मटेरियल की क्या वैल्यू खत्म हो गई, अब आप उसको फेंक सकते हैं? नहीं। That preservation of that record is very very important, because हम लोग आज जी रहे हैं in this era of deep fakes and artificial intelligence। ऐसी चीज है कि आप एक फोटो को इतना कन्विंसिंग बना सकते हैं, जो हिस्टोरिक फोटो एक कंप्लीटली फेक फोटो है या कंप्लीटली फेक डॉक्यूमेंट है, वो आप डॉक्यूमेंट को इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं एआई में और डिजिटल टूल्स लेके कि आपको पता चलना मुश्किल हो जाएगा कि ये ओरिजिनल है कि फेक है। उस वजह से वो उस ओरिजिनल का प्रिजर्व करना, उस ओरिजिनल का होना, उस ओरिजिनल का एक्सेस हो पाना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दे हैव टू बी एक्सेस्ड। द अदर थिंग इज, आर वी गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड? दुनिया, हम जितना भी आगे प्रोग्रेस करते हैं, दुनिया उससे आगे प्रोग्रेस कर जाती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, जिससे पूरे टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं लोग, सिर्फ मेटा डेटा नहीं, पूरा टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं। वो सब टेक्निक्स आ रही हैं। एक और चीज हमें ये देखनी है कि जब हम डेटा आर्काइव्स क्रिएट करते हैं ग्लोबली, पूरी दुनिया में आर्काइव्स डिजिटाइज हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, और इन थियोरी ये दुनिया को पास ला रहा है। हम स्कॉलर दिल्ली में बैठ के ब्रिटिश लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्रिटिश म्यूजियम के रिकॉर्ड्स सकते हैं। ये थियोरी है, प्रैक्टिस में क्या है? क्या हम वाकई उनको एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कई तरह की बाधाएं आती हैं। एक तो फाइनेंशियल है, क्योंकि ये जो सारे इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने ऐसे फाइनेंशियल बैरियर्स लगा रखे हैं कि हमारे स्कॉलर्स उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम किस तरह से, I think government to government, institution to institution collaborations have to happen कि Indian scholars इंडिया में बैठ के जो हमारे मटेरियल्स हैं, बल्कि कई बार हमारे मटेरियल्स अब्रॉड हैं, वो एक्सेस कर पाए। और आखिर में मैं एक दो चीज कहना चाहूंगी, एक ही चीज कहना चाहूंगी, बल्कि उसका थोड़ा सा एक दो पहलू है। एक बहुत बड़ा आर्काइव जो हम अभी तक अनटच्ड है, अभी तक तो मैं पब्लिक आर्काइव की बात कर रही हूँ, उसमें कुछ हद तक प्राइवेट पेपर्स भी आ जाते हैं, और ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट पीपल हु हैव बीन इंपॉर्टेंट, जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स या कुछ, उनके रिकॉर्ड्स, प्राइवेट पेपर्स हम लोग इंस्टीट्यूशनल आर्काइव्स में मिल जाते हैं, जहां पे वो प्रिजर्व होते हैं। बट हम लोग सबके घर में कई बार बहुत पुराने पेपर्स पड़े रहते हैं। ये भी एक अनटच्ड आर्काइव है, ये डोमेस्टिक आर्काइव है। यहाँ पे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस में, या छोटे बड़े इंस्टीट्यूशंस में अपने आर्काइव्स होते हैं, जिनका जो अक्सर खो दिए जाते हैं। हम लोग अपने घरों पे देखते हैं कि हम लोग ने घर, मान लीजिए घर बदला, या फिर घर में थोड़ी जगह की कमी है, हमने जगह बनाने के लिए पुराने सारे पेपर्स फेंक दिए। आजकल के डिजिटाइजेशन की एज में इसको प्रिजर्व करना उतना मुश्किल नहीं है, और इस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है कि आगे हम किस तरह की चीजें टैप कर सकते हैं, किस तरह के आर्काइव्स टैप कर सकते हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सहारे से उनको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे बंद करूंगी। आगे बहुत सारे पेपर्स होने वाले हैं, बहुत स्पीकर्स आएंगे, तो उनका आप उनसे उनकी बातें सुनिए और सीखिए। क्या मैं भी सीखना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। विस्तार से समझने के लिए दो सत्रों का और अलग अलग पेपर्स का एक माध्यम होगा ही, और अभिलेख के महत्व को हम सब जानते हैं, अभिलेखागार के महत्व को जानते हैं। वक्त की अपनी सीमाओं के साथ अब मैं उस शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है।